Hello everyone, here we will be starting with History, Class 9th, Chapter 1, The French Revolution. So welcome to our channel, The Educational Tips. Here we are starting with the chapter. करते हैं एनसीईआरटी पोर्शन से द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो अब जो मैंने आपको स्टोरी डिपिक्ट करी थी हेयर ऑन इवेंट ऑफ 14 जुलाई, वही हमको यहाँ पे पैराग्राफ्स में बताई गई है। लेट्स रीड। ऑन 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? सिटी ऑफ पेरिस में वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने क्या किया? ट्रूप्स को मूव करने के लिए बोला सिटी में, जिसकी वजह से वहाँ पे रूमर्स फैल गई। क्या रूमर्स फैल गई? द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। कि किंग ने ये बोल दिया है कि लोगों पे ओपन फायर करना शुरू कर दो। ठीक। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into the number of government buildings in search of arms. और इसकी वजह से क्या हुआ? जब लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ ऐसा कर दिया है, ऑलमोस्ट 7,000 ऑफ men and women gathered in front of the town hall area, और उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। उनको जहाँ से हथियार मिले, गन्स मिले, अपने प्रोटेक्शन के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग दोज थिंग्स। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed into the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. And finally, all the people started moving towards the prison of Bastille, जहाँ पे और लोग बंदी बनाए हुए थे सरकार ने, ठीक, ताकि उनको उन लोगों से हेल्प मिल सके। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released, though there were only 7 of them. और इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? The commander of the Bastille was killed and the prisoners of the Bastille were released. और prison में सिर्फ 7 ही कैदी थे। There were only 7 prisoners in all in the prison and those 7 prisoners were released. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in markets to all those who wished to keep the survivor of his destruction. The days that followed saw many rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं the government as well as the people were against each other. गवर्नमेंट एंड पीपल, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गए। As well as the people were also protecting for the high price of bread here. Much later, when the historians look back upon this time, they saw this the beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. And when the historians see this particular incident, they try to relate it through the history where the chain of events almost started. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? And almost at that particular point of time, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। नेक्स्ट है स्टडी। देखो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर पेज। इसमें क्या दिया हुआ है? देखो ये है यहाँ पे ये लोग दिखाए हुए, दिस पर्टिकुलर दीज आर द पीपल,
दिस इज द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग पीपल आर फायरिंग अपॉन ईच अदर। So this picture was made soon after the order was passed by the king. Ab here we were going to study the next topic, French society during the late 18th century. 18th century में French society कैसी थी? तो this is a note description. इसको समझते हैं, उसके बाद NCERT टॉपिक में मूव करेंगे। In 1774 King Louis XVI of Bourbon family. अब ये जो किंग लुइस 16 था, इन 1774 किंग लुइस 16 इज द किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। ही मैरिड ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोनी। ठीक है, अब जब ये किंग बना, ही गॉट एम्प्टी ट्रेजरी। जब ये किंग बना उसको अपनी ट्रेजरी कैसी मिली, खाली ट्रेजरी मिली, एम्प्टी ट्रेजरी। एंड वाई व्हाट वाज द रीजंस ऑफ दिस एम्प्टी ट्रेजरी? रीजंस वर लुइस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज। लुइस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करी थी टू गेन इंडिपेंडेंस, और इस पर्टिकुलर वजह से उसने ऑलमोस्ट 1 बिलियन लिवरेजेस का डेप्ट फेस किया। डेप्ट मतलब कर्जा फेस किया, एंड लिवरेजेस इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। एंड सेकेंड रीजन वॉज द डेप्ट रोज टू 2 बिलियन लिवरेज एज लेंडर चार्ज इंटरेस्ट। और क्योंकि आप कर्जा लोगे किसी से, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे, तो ये इंटरेस्ट चार्ज करते करते 1 बिलियन लिवरे कितना हो गया था, ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवरेज हो गया था। फर्दर मेंटेनेंस ऑफ द लॉस ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सलीज वॉज वेरी हाई। अब जो किंग का पैलेस था उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से भी उनकी ट्रेजरी खाली थी। So here we can say that thus the government had to increase taxes, और इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, टैक्सेस इंक्रीज करने पड़े। और हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। हमारी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। एंड व्हाट वाज द 3 स्टेट्स देयर? अब हमने देखा है 1789 का पीरियड। ठीक है, 1789 से पहले की जो सोसाइटी थी और आफ्टर की सोसाइटी, इस हिसाब से हम फ्रेंच सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बिफोर, आफ्टर। ठीक, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, हम ये पढ़ेंगे। इसको भी पहले हम नोट्स में समझते हैं। ठीक है, हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड? अब देखो, इसमें फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट वन वाज क्लर्गी, देन नोबेलिटी एंड बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, पीजेंट्स। फर्स्ट, जिसको हम बोलते थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। 3 स्टेट्स में फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड। फर्स्ट स्टेट पीपल्स वर कॉल्ड क्लर्गी, सेकेंड स्टेट पीपल वर कॉल्ड एज नोबेलिटी, और थर्ड स्टेट पीपल्स में कौन कौन आते थे, बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, पीजेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी ना, द फर्स्ट और सेकंड स्टेट पीपल, दे वर एंजॉइंग सम प्रिविलेजेस बाय बर्थ। इनको कुछ प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रहे थे, जन्म से ही, जब से वो जन्म हुए थे वैसे ही उनको दे वर एंजॉइंग स्पेशल प्रिविलेजेस एज। एंड व्हाट वाज दैट स्पेशल प्रिविलेज? दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। उनको टैक्स नहीं देने पड़ते थे। वेयर एज जो थर्ड स्टेट्स थी उनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। ये हम थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेट क्या होता था, थर्ड स्टेट को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, उनको डायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते थे। डायरेक्ट टैक्सेस का नाम क्या है, टेली। दे नीड टू पे टेली टू द गवर्नमेंट। टेली इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, और क्या होता था उनके साथ थर्ड स्टेट में? आज 60% ऑफ द लैंड वर ओन्ड बाय द नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स। 60% ऑफ द लैंड कौन ओन करता था? नोबल्स ओन करते थे, चर्च या फिर अदर रिचर मेंबर्स ओन करते थे। सो पीजेंट्स ऑल्सो नीड टू पे टैक्सेस टू द चर्च कॉल्ड तिथि। और इसी वजह से, क्योंकि लैंड किसका हो गया, रिचर मेंबर्स का हो गया, और लैंड पे जो लेबर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, वो काम करेंगे, तो इस वजह से उनको उस पर्टिकुलर लैंड पे काम करने के लिए भी उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। एंड दैट पर्टिकुलर टैक्सेस वाज कॉल्ड तिथि। तो तिथि क्या है? तिथि वाज टाइप ऑफ टैक्स दैट वाज लेविड बाय द चर्च। ठीक है, और ये 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कंप्राइज करता था। सो हमने यहाँ पे देखा कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। अब ये जो फेडरल सोसाइटी है ना, इसको मैंने ओल्ड रेजिम बोला है,
क्यों? क्योंकि 1789 से पहले की सोसाइटी है। बाद में हम ये भी देखेंगे कि 1789 के आफ्टर की सोसाइटी कैसी थी। ये जो हमने 1789 देखा और जो एस्टेट्स देखे वो बिफोर द सोसाइटी में थे। नाउ कम्स द टेक्स्ट बुक पार्ट। एक बार इसको टेक्स्ट बुक पार्ट में से भी पढ़ लेते हैं। 1774 किंग लुइस ऑफ द बर्बन फैमिली असेंडेड द थ्रोन। 1774 में किंग लुइस ने बर्बन फैमिली से जो बिलोंग करता था उसने थ्रोन असेंड किया, यानी कि वो किंग बना। ही वॉज 20 years old। वो कितने साल का था? सिर्फ 20 साल का था व्हेन ही बिकेम द किंग। उसके अलावा एडेड टू द वार वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्सट्रावेंट कॉस्ट ऑफ इम्प्रेसिव पैलेस ऑफ वर्सलरीज। और जो पैलेस की कॉस्ट थी, पैलेस की जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, दैट वाज आल्सो टू हाई। एंड अंडर द किंग लुइस फ्रांस 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। किंग लुइस ने हेल्प करी थी ऑलमोस्ट 13 अमेरिकन कॉलोनीज को टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक, यहाँ पे ब्रिटेन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आएगा, हम आगे देखेंगे। The war added more than a billion livres in debt that was already risen to more 2 billion livres. अब उनके पास कितना था जब उनको हेल्प करनी थी? तो इट वॉज ऑलमोस्ट 1 बिलियन लिवरेज, 1 मिलियन लिवरेज डेप्थ था, बट वो कितना हो गया बढ़ के? ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवरेज। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। और lenders अब कितना चार्ज करने लगे थे? ऑलमोस्ट 10% उस लोन पे चार्ज करने लग गए थे। So French government was obliged to spend an increasing percentage of its burden of interest payments alone to meet these regular expenses। और इस पर्टिकुलर वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट को अपना ये इंटरेस्ट और लोन चुकाने के लिए अपना टैक्सेस वगैरह बढ़ाने पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस ही नहीं पे कर पा रहे थे। सो देवर difficulty in paying the regular expenses as well as cost of maintaining the palace was and army was also very high। उसके अलावा उनको गवर्नमेंट ऑफिसेज में, आर्मी को, सबको पे करना पड़ता था। So the French society in 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate pay taxes। और फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी और सिर्फ थर्ड मेंबर के जो थे लोग वो टैक्सेस पे करते थे। नेक्स्ट वी हैव द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम दैट dated back to the Middle Ages। The old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। हम 1789 से जो पहले का पीरियड है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओल्ड regime। और इसी में 3 एस्टेट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी। Now figure 2 shows how the system of estate in French society were organized। अब यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं कि how the society of the system of French society was divided into estates। Here peasants made up to 90% of the population। और जो peasants थे वो almost comprise करते थे almost कितनी population? 90% of the population। However only a small number of them owned the land they cultivate। और उसमें से भी 90% में से भी बहुत छोटा सा पोर्शन ऐसे थे लोग जो लैंड को कल्टिवेट करते थे और ओन करते थे। 60% of the land was owned by the nobles and the church and other richer members of the third estate। और 60% लैंड कौन ओन करता था? रिचर मेंबर्स और चर्च के मेंबर्स ओन करते थे। The members of first 2 estates that is clergy and nobility। और जो members first estate के थे, first estate के कौन थे? Clergy and nobility people। They were exempted from paying taxes and they were enjoying special privileges by birth। The most important of these was exemption from paying taxes to the state। और स्पेशल प्रिविलेजेस जो बर्थ से एंजॉय करते थे उसमें सबसे खास कौन सी थी? दे वर एग्जेम्प्टेड। उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था फ्रॉम देयर बर्थ। The nobles further enjoy federal privileges। This include federal dues which they extracted from the peasants। उसके अलावा जो nobles थे, ठीक है, वो क्या करते थे? दे फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे उनको। कैसे? जो लेबर्स क्लास होते थे या पीजेंट्स होते थे उनसे वो टैक्स वसूलते थे। So they were also privileges they were enjoying। And peasants were obliged to render services to the lord। और peasants को ये काम करना पड़ता था because they were their lord, they had to render those services to them। The church to extract a share of taxes called tithes। और चर्च भी क्या करता था? चर्च भी अपना शेयर
पीजेंट से लेता था, किस फॉर्म में? टिथीज फॉर्म में. टिथीज इज अ टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय द चर्च मेंबर्स. एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. और फाइनली हम क्या देखते हैं कि सारे थर्ड एस्टेट के मेंबर्स क्या करते थे? टैक्स पे करते थे. दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर लेविड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट, टबैको. द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट दो टैक्सेस वो बॉर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन. इसके अलावा हमने ये देखा कि वो टेली देते थे. दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखे हमने. एक टिथीज को कौन दे रहा है? टिथीज वो द पीजेंट्स दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं? चर्च मेंबर्स को दे रहे हैं. टेली इज अ डायरेक्ट टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सारा के सारा जो टैक्स बर्डन है वो किस पे है? थर्ड एस्टेट अलोन इज बियरिंग दोज टैक्स बर्डन. इस पर्टिकुलर फिगर में हम देखते हैं हाउ वाज द सोसाइटी डिवाइडेड. देखो फर्स्ट एस्टेट में क्या दिया हुआ है? क्लर्गी. सेकंड में नोबैलिटी. और थर्ड एस्टेट्स में बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लेबर्स, क्लास पीपल. ये वाला फिगर यू कैन रिलेट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फिगर जो हमने यहाँ पे पढ़ा है. देखो इस पर्टिकुलर फिगर में हमने देखा ना, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स. फर्स्ट एस्टेट इज क्लर्गी. फर्स्ट एस्टेट के पीपल को हम बोलते हैं क्लर्गी. सेकंड एस्टेट नोबैलिटी. और थर्ड एस्टेट businessmen, merchants, lawyer, peasants. And first and second estates people are enjoying special privileges by birth and they are exempted from paying the taxes. Although the third estates have no privileges and they are paying taxes. Teli and Tithi. This is the summary part. ये फर्स्ट पेज जो है जो मैंने आपको समझाया, दिस इज अ समरी पार्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव रेड. नेक्स्ट वी हैव ये फिगर. नेक्स्ट वी हैव दिस फिगर. अब इस फिगर में देखो क्या है? दिस इज अ नोबल मैन. दिस इज अ नोबल पर्सन एंड ही इज अ पीजेंट. एंड व्हाट ही इज डूइंग? ही इज हैविंग ग्रेन्स इन हिज हैंड. ठीक है, नोबल. और यहाँ पे फिगर का टाइटल क्या दिया हुआ है? द स्पाइडर एंड द फ्लाई. अब ही इज द स्पाइडर एंड ही इज द फ्लाई. अब स्पाइडर क्या करता है? अगर कोई मक्खी या मच्छर आता है, स्पाइडर कॉट द फ्लाई इन हिज वेब. ठीक, तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि इसका ये जाल है. किसका? नोबल मैन का जाल है, जिसमें पीजेंट्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, जो स्मॉल फार्मर्स है, थर्ड स्टेट्स के पीपल हैं, वो उसमें फंस गए हैं. दिस पिक्चर पर्टिकुलरली डिपिक्ट्स नोबल मैन एज अ स्पाइडर एंड द पीजेंट्स एंड द थर्ड स्टेट्स पीपल एज अ स्पाई, जो उनके जाल में फंस गए हैं. So this particular thing sums up our topic, कि the French society, the introduction part, as well as the how was the French society in 18th century. Thank you for watching Educational Tubes. Till then, see you in the next video.